Assalamu alaikum students. Today we're going to discuss some further topics of chapter number 10 of grade 10. Our very first topic is damped oscillation. It is a bit smaller topic as compared to the other ones. First of all, the word damped. What is the meaning of damped? According to physics point of view, meaning of damped is that whenever the mechanical energy of some moving system is decreases, whenever the mechanical energy of some moving system is decreases, then that system is said to be damped. Fine? Like if something is moving, for example, पेंडुलम की बात करते हैं क्योंकि हम पीछे बहुत दफा सिंपल हार्मोनिक पढ़ चुके हैं तो हम उसी की बात कर लेते हैं. इफ दिस पेंडुलम इज मूविंग, वाइब्रेटिंग, ऑसिलेटिंग दिस एंड लाइक दिस, फाइन. तो ये क्या है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज बिकॉज इट इज इन मोशन सो इट हैज सम मैकेनिकल एनर्जी. उसकी एनर्जी जब खत्म हो जाएगी तो देन इट गोस स्टॉप, और उसकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स इन एयर. So this system is basically said to be a damped system because its key mechanical energy with the passage of time it is decreasing. Fine. So the system whose energy mechanical energy is going to decreases and decreases, so that system is called damped system. ठीक है. तो जब damped oscillation की बात हो रही है तो oscillation you have studied it before. Oscillation means vibration. So वो system जिसकी vibration कम होती जाए, fine, with the passage of time, that system is called basically the damped oscillation, oscillatory system. और damped oscillation की बात करेंगे तो वो oscillation मतलब vibration जो किसी resistive force की presence में हो. The oscillations that happens in the presence of some resistive force. Resistive force मतलब रोक देने वाली force की presence में हो. That oscillation is called damped oscillation. I repeat my word. The oscillation that is happening in the presence of some resistive, some opposite force, that oscillation is called basically the damped oscillation. Fine. First of all, you have to give the definition of damped system. Damped system. Then you have to give the definition of damped oscillation. दो definitions हो गई. After that you have to give the example of damped oscillation. What will be the example of damped oscillation? Shock absorber of the automobile is the example of damped oscillation. Shock absorber क्या चीज है? Shock absorber is just like some piston like thing. Fine. Yes, आपकी बुक में कुछ ऐसा सही बना हुआ है. Fine. इस तरह का एक कंटेनर होता है जिसके अंदर ऑयल होता है. Fine. ऑयल होता है, वो filled up with piston होता है. Fine. और यहाँ से ऑटोमोबाइल को अटैच किया जाता है ऊपर से. As far as your automobile got some vibration in it, तो ये जो है ये piston, इसकी vibration यहाँ से, ये automobile is getting in undergo some vibration, तो यहाँ से ये इसकी vibration को observe करेगा इस piston के through, और यहाँ से इस piston को इसकी vibration, इसकी rotation, इसकी movement को change कर देगा किसमें? ऑयल की heat energy में. This is oil in it. ठीक है. ऑयल की हीट एनर्जी में चेंज कर देगा और बाकी मतलब उसकी बॉडी की जो वाइब्रेशन है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा और आपकी जो ऑटोमोबाइल है वो सेफ हो जाएगी. फाइन.
क्या है, शॉक ऑब्जर्वर इज द एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटरी सिस्टम या डैम्प्ड ऑसिलेशंस. फाइन. देन आइडियल सिस्टम. आइडियल सिस्टम कौन सा होगा? आइडियल मीन्स जहां पर भी फिजिक्स में वर्ड आइडियल आएगा दैट इज नॉट रियल, दैट इज इमेजिनरी. फाइन. तो वो सिस्टम जिसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो और बॉडी की जो ऑसिलेशंस हैं वो उसी स्पीड पे रहें. लाइक कि अगर मैं फिर एग्जांपल ले रही हूँ पेंडुलम की. फॉर एग्जांपल इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम वाज दैट एंड आफ्टर एन आवर इट्स एम्पलीट्यूड वाज सेम, तो क्या है, रेजिस्टिव फोर्स कोई नहीं है, वो उसको कुछ रोक ही नहीं रहा, वो अपने फ्लो में जो है वो वाइब्रेट करता जा रहा है. तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइडियल सिस्टम एंड इट इज नॉट इमेजिनरी, इट इज नॉट रियल, बिकॉज हर चीज जो मूव करती है वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से स्टॉप होना ही है उसे सामने. वैक्यूम में भी अगर आप अपने इसको वाइब्रेट करवाएं तो फिर भी सम टाइम आफ्टर सम टाइम इट्स गॉट स्टॉप. फाइन. कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है वर्ल्ड में जिसमें जो फाइनली जाके स्टॉप ना हो. फाइन. तो दैट सिस्टम in which the body got oscillation in the absence of some resistive force, that is called ideal system. So that was our topic of the ideal system. Our next topic is wave motion or waves. Waves is basically the wave motion, and this is very much important topic of this chapter. बहुत टाइम ये रिपीट हुआ है पेपर्स में और बहुत ही ज्यादा टाइम इसकी आगे से फिर जो है इसकी टाइप्स जो है वो रिपीट हुई हैं. तो वेव मोशन, बेसिकली वेव मोशन क्या है? वेव मोशन एक डिस्टर्बेंस का नाम है जो एक स्पेस की एक जगह से मीडियम की, इनफैक्ट जो मीडियम की एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो, दैट इज कॉल्ड वेव मोशन. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ बाउल फिल विद वाटर. फाइन. इसके अंदर एक कॉक का पीस रख दे. फाइन. और इसके सरफेस को पेंसिल के टिप से डिस्टर्ब किया जाए. पेंसिल के टिप से अगर डिस्टर्ब किया जाए, दैट कॉक स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड गोज टू द एंड ऑफ or the surface of the or the corners of the bowl. Fine. तो क्या है कि ये डिस्टर्बेंस यहां से स्टार्ट हुई and it goes to the ends or the corner or the edges of the liquid, any liquid which is filled in it. So that basically this whole process is called the wave motion. Or some other example अगर हम ले, if we have some string connected with some rigid support, और यहाँ से अगर कोई इसको जो है डिस्टर्ब करता है, वेव यहाँ से चली एंड गो देयर. वेव डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो ट्रांसफर होगी, दैट इज कॉल्ड द वेव मोशन. नाउ कम्स टू द टाइप्स ऑफ वेव. टाइप्स ऑफ waves. Types of waves, there are basically two types of waves. The waves which require medium for their traveling, these waves are called mechanical waves. वो waves जिनको medium चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो जो waves होती हैं that are called mechanical waves. और the waves which travel even in vacuum, the waves जिनको कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, वो स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती हैं, वो कहीं भी ट्रेवल कर सकती हैं, और इवन के वो लाइक बहुत बड़े बड़े सॉलिड्स में से भी ट्रेवल कर सकती हैं. वो वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज रेडियो वेव्स. कहीं ये वर्ड यूज हो तो घबराना नहीं है, दैट इज रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. फाइन. Number first is mechanical waves. Number second is electromagnetic
मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अच्छा, नाउ कम्स टू द फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बता दिया, अब मैकेनिकल वेव्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। दी मैकेनिकल वेव्स consist of two types. Number one is transverse waves. Number two is longitudinal waves. Transfer waves. Transfer waves are those waves in which the particles of the medium travel perpendicular to the propagation of waves. Like direction of propagation of waves. Like ये देखो this, ठीक है, वेव इस तरह चल रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, और पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, पहले ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, ये परपेंडिकुलरली लाइक दिस, ठीक है, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, फाइन। तो पार्टिकल ऑफ मीडियम अगर परपेंडिकुलरली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स के हैं तो दैट वेव इज कॉल्ड ट्रांसफर वेव। और अगर पार्टिकल ऑफ मीडियम की वही डायरेक्शन है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, लाइक वेव इज गोइंग दिस इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और ये वेव भी इस तरह चल रही है, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जो है वो वेव की प्रोपगेशन की भी वही डायरेक्शन है, तो दैट waves are called longitudinal waves. So longitudinal waves में दो फर्दर चीजें आ गई ट्रांसफर वेव्स में, ट्रांसफर वेव्स एंड longitudinal waves. This is transfer wave, this is longitudinal wave, fine, okay. Now this is our the fixed point या mean points, ठीक है, यहां से पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, यहां से नीचे आ रहे हैं, this is our mean points from where the particles are moving up and down. तो जो अपर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, और जो लोअर पोर्शन इस वेव का है दैट इज कॉल्ड ट्रफ। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ये, ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन है। तो द पोर्शन ऑफ द ट्रांसफर वेव विच इज अबव द मेन पोजीशन इज कॉल्ड crust. This is crust, and the particles of mediums which are moving down to the main position that are called troughs, ठीक है, ये चीज समझ ली। Then what is wavelength? Wavelength is basically the distance between the two consecutive crusts or two consecutive troughs. This is, and it is represented by the word lambda, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग में बहुत अच्छी तरह से आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का अंदाजा होगा, लाइक ये स्प्रिंग है, एक स्लिंग की स्प्रिंग ले लिया जिसको आपने इस तरह खींचा तो कहीं उसके जो है वो जो उसकी कर्व्स हैं वो करीब हो जाएंगे, कहीं दूर, फिर करीब, फिर दूर, तो वो पार्टिकल, वो मीडियम जहां पर उसके कर्व्स करीब करीब हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम which are closer to one another, that portion is called compression, fine. और वो the particle of medium which are far away from each other in longitudinal waves, वो क्या कहलाएंगी, rarefactions, fine. और दो consecutive compressions, ये और दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा, फाइन। दोबारा से पढ़ते हैं, ट्रांसफर वेव्स कौन सी हैं, इस टाइप की वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम ऊपर नीचे परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स आते हैं,
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी हैं? जो कि स्लिंकी स्प्रिंग में जो वेव्स बनती हैं, कहीं कंप्रेशन कहीं रेयरफेक्शन, इस तरह से जो चलेंगे। फाइन। अब ट्रांसफर वेव में फर्दर क्या चीज है? जो ऊपर वाला पोर्शन दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, जो नीचे वाला पोर्शन दैट इज कॉल्ड ट्रफ। अब इसमें आ जाए, जो जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, वो क्या है? वो रेयरफेक्शन है। और जिसमें क्लोजर है दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। वैसे भी हमें पता है ना कि कंप्रेस हुई चीज, जुड़ी हुई चीज। फाइन। तो इसमें भी द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड, ग्रीक वर्ड लैम्डा, और इसका यूनिट मीटर है क्योंकि डिस्टेंस है। फाइन। और the distance between the two consecutive crusts or troughs is called wavelength इस केस में। फाइन। ये सारी चीजें हेडिंग वाइज आपने जो है यू हैव टू राइट इट, और एग्जाम्पल में आ जाएंगे जब हम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर वेव्स आर द वाटर वेव्स, फाइन, और द लाइट वेव्स, और एग्जाम्पल ऑफ, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? इसमें हमने पढ़ा कंप्रेशन, सॉरी क्रस्ट, ट्रफ और वेवलेंथ। इसमें क्या पढ़ा हमने? कंप्रेशन, नंबर 2 रेयरफेक्शन, और नंबर 3 इसमें भी हमने वेवलेंथ की डेफिनेशन दोबारा पढ़ी। फाइन। तीसरी चीज क्या है? एग्जाम्पल। चौथी चीज, इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है लाइट वेव्स और वाटर वेव्स। फाइन। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है साउंड वेव्स। फाइन। तो ये है बेसिकली, अगर डिफरेंस भी आ जाता है ट्रांसफर वेव का, यू कैन राइट इट लाइक दिस, कि इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की है, इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसकी डेफिनेशन क्या है। और अगर आता है राइट द डेफिनेशन ऑफ वेव, ठीक है, डिफाइन वेव्स और राइट इट्स टाइप, तो यू कैन फाइंड, यू कैन राइट इट। पहले मैकेनिकल वेव देनी है, उसकी दोनों टाइप्स को डिस्क्राइब करना, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तो सिर्फ डेफिनेशन देनी है विद एग्जांपल, ठीक है। और वेव की एक डेफिनेशन हमने शुरू में स्किप कर दी। वेव इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर। फाइन। वेव इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पोर्शन टू एन अदर, ठीक है। और उसमें जो है वो पार्टिकल्स आपके वाइब्रेट करते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स। Like wave is basically the transfer of energy from one part of the medium to another part, fine, और उसमें the particles of the medium always undergo the vibration. Vibration किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अगर ट्रांसफर वेव्स है तो वाइब्रेशन परपेंडिकुलरली होगी, और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है तो वाइब्रेशन पैरेलल होगी to of the vibration of the particles are parallel to the propagation of waves, to the direction of propagation of waves. Hope you understand this all, students. If you have some questions and queries, you can ask me in comments. Please, students, you have to subscribe my channel and spread it as you can. And that topic was a bit longer as compared to the previous one, but you have to learn it and understand it. Thank you very much.